So, welcome back students. Today we are going to spend our last day doing the numericals of work, power and energy. So, we are now reached question number 6.19. Let's read the question. It says a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 kilometers per hour on a frictionless track. After a while, the sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag has become empty? So, let's convert this into a diagram. तो हमारे पास एक ट्रॉली है जिसका मास है 300 kg और उसमें सैंड है 25 kg की. So the initial mass of the trolley becomes 325 kgs and it is moving at the speed of 27 km per hour and the mass is leaking out, that is dm by dt is minus negative है, कम हो रहा है 0.05 kg per second. जब खाली हो जाएगी तो इसका मास सिर्फ बचेगा 300 kg. Now the sand is leaking down in the down direction. It is coming out in the down direction. Therefore, there is no change in the horizontal speed of the trolley. Momentum, change of momentum is in the down direction. So, in the accordance to the principle of independence of axis, क्योंकि सामान नीचे गिर रहा है तो स्पीड ऊपर की तरफ जानी चाहिए ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्पीड को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो स्पीड ऑफ द ट्रॉली विल कंटिन्यू टू रिमेन 27 kg per kilometers per hour. Okay, no change. So that is a interesting observation. You can take a screenshot and then proceed ahead. Let's look at question number 6.20. Question number 6.20 says that, let's read the question please. Right, पढ़िए जरा क्वेश्चन को. So it says a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity of a x raised to the power of 3 by 2, where a is 5 a की कुछ वैल्यू बताई गई है, 5 per meter second यूनिट्स हैं. दैट्स ओके. What is the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meters? So let us see what all is given to us. Mass 0.5 kg, velocity a की जगह हम 5 लिख देंगे. velocity which is dx by dt is 5x raised to the power of 3 by 2 and the displacement is from x equal to 0 to x equal to 2 meters. To find work. Work done का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में f डॉट dx from 0 to 2 एंड फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो होता है बच्चों dv by dt, राइट. सो एक्सेलरेशन इज dv by dt और v हमको गिवन है, बहुत बढ़िया. लेट अस पुट v की जगह 3x raised to the power of 3 by 2. इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, 5, कांस्टेंट बाहर, x raised to the power of 3 by 2 था, पावर 3 by 2 थी तो 3 by 2 x raised to the power of 1 by 2 into dx by dt, है ना. अब डेरिवेटिव ऑफ dx by dt. नाउ व्हाट इज x, व्हाट इज x, राइट. सो लेट्स होल्ड इट हियर. तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, और dx by dt क्या है, वो तो वेलोसिटी होता है ना. सो dx by dt, डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अ पेन.
So let me take a magic pen. So dx by dt, this term is velocity and velocity का expression. तो ये है हमारे पास, है ना, this is velocity. Okay, so this is velocity. तो डाल देंगे यहाँ पे इसको, तो आएगा हमारे पास dx by dt की जगह we will write 5 into x raised to the power of 3 by 2. 15 5s are 75 by 2, or bases are same, powers get added, 1.5 plus 0.5 is 2, that is x square. तो एक्सेलरेशन मिल गया. दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले हमने वेलोसिटी की इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन ढूंढा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. नाउ मास पता है आधा किलो 0.5 and acceleration is 75 by 2, that is 75 by 4 x square. Now let us put equation number 4 in this equation. हमको force पता चल गया. 75 by 4 x square dx from 0 to 2. Constants को बाहर निकाल लो. 75 by 4 x square का इंटीग्रल क्या होता है? x cube by 3. 325 are from 0 to 2. Upper limit minus lower limit, that is 2 cube minus 0 cube. So 25 by 4, 2 cube is how much? 8. So that will be 50 joules. 4 1s are 4 2s are 8, 25 2s are 50 joule. So the पूरा page एक साथ, take a screenshot if you so need it. Otherwise please try. एक बार समझ आ गया, आप खुद करो इसको. अटक जाओगे तो rewind करो and go back to what I have explained. Do these things yourself. Okay, let's go to the next question. The next question for us is question number 21. It says the blades of a windmill sweep out a circle of area A. The blades of a windmill sweep out a circle of area A. If the wind flows at a velocity of v perpendicular to the circle, what is the mass of the air? तो विंड ऐसे चल रही है, विंड हवा ऐसे चलती है जिसको पंखों को हिलाती है. तो दिस इज द वेलोसिटी v. Perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? B part, what is the kinetic energy of the air? C part, assume that the windmill converts 25% of wind energy into electrical energy, and given that area is 30 meters square and velocity is 36 kilometers per hour of the air and the density of the air is 1.2 kg per cubic meter, then what is the electrical power produced? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. तो हमने डायग्राम बनाया, एक विंडमिल का डायग्राम बनाया. क्या क्या गिवन है हमको? एरिया A is 30 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर्स पर आवर. उसको 5 by 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी ऑफ एयर हमको कहा गया है 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर एंड एफिशिएंसी इज 25%. पहला बात हमको पूछने के लिए कहा गया मास ऑफ द एयर मूविंग. सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर. थर्ड, व्हाट इज द आउटपुट पावर. नाउ मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना. डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. देखो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय टी, आई विल गेट मास ऑफ द एयर मूविंग पर यूनिट टाइम, है ना. क्योंकि हमको एक्चुअली में मास ऑफ एयर नहीं ढूंढना है, मास ऑफ एयर पर यूनिट टाइम ढूंढना है ना. व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, राइट. तो मास ऑफ द एयर, सो दैट विल बिकम डेंसिटी. और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द डिस्टेंस. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है. डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी एयर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वी हैव रो ए वी. सो मास पर यूनिट टाइम इज रो ए वी. रो मालूम हमको, ए मालूम, वी मालूम, ये वैल्यूज हैं. डाल देंगे तो मास पर यूनिट टाइम विल बी 360 kg per second. तो हाउ मच मास ऑफ एयर इज पासिंग थ्रू द windmill per second? That is 360 kg per second.
अब सेकेंड पार्ट बोलता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों होता है हाफ ऑफ mv²। और m क्या है, फॉर्मूला के अंदर बात करूं मैं, ये फॉर्मूला के टर्म से बात करूं, m क्या हो जाएगा, ये है पूरा का पूरा रो ए वी इंटू टी। तो मास है रो ए वी इंटू टी, मास की जगह हमने रो ए वी इंटू टी लिख दिया। डेंसिटी एरिया ऑफ द ब्लेड्स एंड v इज द velocity of the wind, t is the time, और v square, so v square into v becomes v cube। so हमारा फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ रो ए v cube into t, that is the kinetic energy। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज द आउटपुट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट काइनेटिक एनर्जी। 25% है, 25/100 1/4। सो आउटपुट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अंदर आई काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो आउटपुट की क्या होगी 1/4 होगी। इतनी एनर्जी में से इतनी एनर्जी बिजली में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, 1/4 कन्वर्ट हो जाएगी ऑफ दिस होल थिंग। सो दिस विल बी 1/8 रो ए वी क्यूब, और टाइम को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी आउटपुट जो बिजली में कन्वर्ट होती है पर यूनिट टाइम, और इसी को बोलते हैं हम पावर। पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। सो दैट इज 1/8 रो ए वी क्यूब। रो पता है हमको, ए पता है 30, वी पता है 10 क्यूब। इफ आई सॉल्व दिस आई गेट 4.5 किलोवाट। तो जो एक विंडमिल है, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो पूरी विंडमिल है उसकी पावर आउटपुट is going to be 4.5 kilowatt. This is the power of the windmill, right? आइए हम इस क्वेश्चन में सीखना चाहते हैं कि वेट लिफ्टिंग से कितना वेट लॉस होता है ना, वेट उठाने से कितना वेट लॉस होगा। तो आपको पता चल जाएगा कितना वेट उठाना पड़ेगा और कितनी बार उठाना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट लॉस हो सकता है। So person trying to lose weight lifts a 10 kg mass 1000 times to a height of half a meter each time। उसके हाथों की हाइट आधा मीटर है, तो आधा मीटर ऊपर करता है, आधा मीटर नीचे करता है। और कितनी बार करता है, 1000 बार। अब देखते हैं 1000 बार 10 किलो उठाएगा, 5 एक हाथ में 5 दूसरे हाथ में, जोर लगा के हमेशा आधा मीटर ऊपर फिर नीचे, कितनी बार, 1000 बार। So assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. How much work done does she do against gravitational force? And if the fat supplies 3.8 into 10 raised to the power of 7 joule of energy per kilogram, which is converted into mechanical energy with a 20% efficiency rate, how much fat will the dieter use up? फैट से कितनी एनर्जी मिलती है वो पता है हमको, 1 किलो फैट जब बर्न करता है कितनी एनर्जी देता है। लेकिन जितना भी आप मैकेनिकल वर्क करते हो ना, उसमें से फैट के बर्निंग की एफिशिएंसी सिर्फ 20% है। 20% ऑफ फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने डायग्राम बनाया, मान लो एक डंबल है हमारे पास 10 किलो का, आधा मीटर ऊपर आधा मीटर नीचे। नीचे आने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, ग्रेविटी खुद ले आती है, ऊपर खींचने में हमको वर्क करना पड़ता है। सो एक बार लिफ्ट करेंगे, अगर हम वन टाइम लिफ्ट करेंगे तो वी रेज द पोटेंशियल एनर्जी बाय mgh, है ना। m है 10 kg, g है 10, h है आधा मीटर। सो एक बार ऊपर करने में आपको 50 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा। इसलिए 1000 बार लिफ्ट करोगे तो यू हैव टू डू 50,000 जूल ऑफ वर्क। So how much work has to be done to lift 1000 times? That is 50,000 joules. फिर B part, fat कितना एनर्जी देता है? So energy supplied by 1 kg of fat is 3.8 into 10 raised to 7 joule. And ये क्या है? इनपुट है। आउटपुट कितना है? 20%. So E output is 20/100 of this
दैट मीन्स इन अ वे उठाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो 20% ही है, 80% तो बॉडी के अंदर हीट हो जाती है, पसीना आ जाता है और कई सारे बॉडी चेंजेस आती हैं एक्सरसाइज करने से। सो फैट जो है आपको कुल एनर्जी देता है 20%, वो आ गई 7.6 इंटू 10⁶ जूल। दैट मीन्स 7.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ फैट की एनर्जी बर्न्स 1 kg ऑफ फैट। So 1 joule burns 1/7.6 into 10⁶ kg और 5 into 10⁴ जूल में कितनी होगी, क्योंकि 5 into 10⁴ जूल चाहिए 1000 बार उठाने के लिए, तो कितनी हो जाएगी, दैट इज 6.5 into 10⁻³ kg, दैट मीन्स 6.5 grams. Oh God, that is why we say losing weight is so difficult. डंबल उठाए 1000 बार डंबल उठाए, लोग 10 में उठा के थक जाते हैं, तो 1000 बार बेचारे ने उठाए तब जाके 6.5 ग्राम थोड़ा हल्का हो जाएगा ये। अब अगर उसने 6.5 किलो लूज़ करना है तो आप सोच सकते हो उसको बेचारे को 1000 दिन लगेंगे। रोज़ एक बार 1000 बार डंबल उठाएगा, 6.5 किलो लूज़ करने में उसको 1000 दिन लगने वाले हैं। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए फैट ना आए इज़ बेटर दैन फैट लूज़ करना पड़ जाए। वेरी इनएफिशिएंट वे टू लूज़ अ फैट। ओके, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रोज़ लगे रहो मुन्ना भाई, और कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। तो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6.23, इट सेज अ फैमिली यूजेज 8 kilowatt of power. Family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per meter square. सन की लाइट की पावर बताइए 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted into useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? और फिर देखो कि आपकी छत का एरिया कितना होता है और क्या आप अपने घर में बिजली पैदा कर सकते हो। सो घर की रिक्वायरमेंट है बच्चों 8 किलोवाट। फ्रिज, एसी, हीटर जो भी लगाया आपने वो सब 8 किलोवाट पावर के हैं। यूज़फुल एनर्जी कितनी है, 20% ऑफ 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 40 वाट है पर मीटर स्क्वायर इज़ द एनर्जी अवेलेबल। आप कितना एरिया चाहिए 8000 वाट बनाने के लिए, 1 मीटर से 40 वाट होते हैं, तो 200 मीटर स्क्वायर चाहिए। 200 मीटर स्क्वायर मतलब जो घर की छत है वो होनी चाहिए 14.14 मीटर इंटू 14.14 मीटर। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 50 फुट बाय 50 फुट, 50 फुट बाय 50 फुट की छत होगी ना आपकी, तो जाकर वो घर होगा, तो वो 8 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। और इतनी छत होती है नॉर्मल घरों की, है ना, 50 मीटर पे 50 मीटर। उधमपुर में, जम्मू में होती है, दिल्ली में नहीं होती है, दिल्ली के घर छोटे होते हैं, उधमपुर जम्मू में तो होती है। तो हम अपने घर में अपने घर की बिजली खुद पैदा कर सकते हैं सोलर पैनल्स लगाकर, राइट। इन हैप्पी मॉडल वी जनरेट 40 किलोवाट ऑफ आवर 40 किलोवाट ऑफ आवर ओन एनर्जी, right? So we come to the additional exercise questions. Last day है हमारा, हम आज सारे questions इसके कर देंगे। 6.24 it says a bullet of mass 0.012 kg and a horizontal speed of 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg. तो एक लकड़ी है 0.4 kg की, ऐसे हैंग कर रही है। एक बुलेट आके जिसका मास है 0.012 kg, वो 70 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आके ठा करके साथ इसके साथ टक्कर मारती है।
कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइसेस, है ना, ये ब्लॉक जो ऐसे ऊपर चल जाएगा, अरे गोली लगी है इसको, है ना, ऊपर चल जाएगा ये ब्लॉक, ऊपर की तरफ जाएगा ये ब्लॉक। हमको पता करना है कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइसेस एंड उसमें कितनी हीट पैदा हो जाएगी अगर वो गोली उसमें धंस जाती है। तो पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लगता है इट इज़ अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, क्योंकि बुलेट मास में अंदर ही धंस जाती है। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बुलेट का है, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m इनटू इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी फाइनल। वी फाइनल कितना आ जाएगा, स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। वैल्यूज डालता हूँ तो वी फाइनल आ रहा है हमारा 2.04 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना, भी टेक ये ब्लॉक बच्चों ऐसा ऊपर चल जाएगा, पहले ब्लॉक यहाँ था, अब ये ब्लॉक यहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर चला गया, है ना, पहले यहाँ था, थोड़ा ऊपर चला गया, ये यहाँ चला गया, इतना ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया। सो दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल मास इंटू जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ टोटल मास इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। मास मास कैंसल, तो h इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2g। वी फाइनल अभी भी ढूंढा है हमने यहाँ पे 2.04 का स्क्वायर अपॉन 2, g को हम 10 ले सकते हैं। सो हाइट इज 0.208 मीटर, दैट इज 20.8 सेंटीमीटर, इतना ऊपर जाएगा। कितनी हीट पैदा होगी भाई, बुलेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और कुछ काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड है, जो डिफरेंस है वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्टिंग एनर्जी कितनी थी बुलेट की, 29.4 जूल्स, बाद में कितनी एनर्जी है वी फाइनल के हिसाब से 0.86 जूल्स। तो इसका मतलब 29.4 joules minus 8.6 joules, that's 28.54 joules. So the heat produced in the wooden block will be 28.54 joules. So ज़्यादातर energy of the bullet has been converted into heat energy and very little into has been given to the blocks, right? पूरा स्क्रीन शॉट एक लेना हो तो हमने 3 स्टेप्स में किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। ये बोलता है 2 इंक्लाइंड प्लेन्स है हमारे पास, एक पहाड़ है, एक तरफ की स्लोप कम है, एक तरफ की स्लोप ज़्यादा है, उसका एंगल θ2 है, और हम A से 2 बॉल्स को एक साथ ड्रॉप करते हैं ना। 2 इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, one gradual slowly and the other steep meet at A, from where 2 stones or 2 balls are allowed to slide down from rest, one on the each track। एक जैसे पत्थरों को दोनों तरफ से हम नीचे स्लिप होने देते हैं। Will the stones reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? Assume θ1 is 30 degrees and θ2 is 60 degrees and the height h is 10 meter. What are the speeds and the time taken by the 2 stones? अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो g इधर लगती है, फ्रिक्शन नहीं है, तो हम इस g को 2 टुकड़े कर दिए, एक g cos थीटा वाला और एक g sin थीटा वाला। नीचे लाने की जिम्मेवारी किसकी है, वो तो g sin θ1 की है। cos थीटा उसे दबाता है नीचे, इधर भी एक g cos थीटा होगा, तो यहाँ पे है एक्सेलरेशन इज g sin θ1, यहाँ पे है g sin θ2, राइट। नाउ हाइट h सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर हम अलोंग द प्लेन ले रहे हैं तो डिस्टेंस में भी हमको अलोंग द प्लेन लेना पड़ेगा। h पता है हमको, थीटा पता है, तो हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकते हैं।
साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, एच अपॉन ए बी। सो ए बी क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ए बी इंक्लाइंड प्लेन की दिस विल बी एच अपॉन साइन थीटा। इसमें हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों स्टार्ट करते हैं, वो जब ए से स्टार्ट करते हैं तो वो रेस्ट पे होते हैं। तो यू तो ज़ीरो है हमारा, यू तो ज़ीरो है, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई। हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है, जी साइन थीटा 1, जनरल लिख रहे हैं हम जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। तो t क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। अब हम, ये हमारा मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, दोनों में काम आएगा, सही है। अब t1 क्या होएगा, कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट में इज़ 1 बाय साइन 30 इंटू 2h दैट्स अंडर रूट 2, 2 ऊपर गया तो टाइम लगेगा 2 अंडर रूट 2 सेकेंड्स, ओके। जबकि इसमें टाइम t2 साइन 60 है, अंडर रूट 3 बाय 2, 2 ऊपर चला गया, ये तो अंडर रूट 2 ही है, सो 1.63 सेकेंड। सो t1 में लगता है 2.83 और t2 में लगता है 1.63। सो हम देख सकते हैं कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है उसमें टाइम कम लगता है, जिसकी स्लोप कम होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, सही। तो ये है हमारा फॉर्मूला, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू मूव अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। स्पीड, स्पीड तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पता चलती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर है। सो वी रियलाइज दैट बोथ द बॉल्स विल कम डाउन विद द सेम स्पीड। स्पीड सेम होगी लेकिन टाइम टेकन सेम नहीं होगा। और स्पीड आ रही है हमारी 10 अंडर रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड और 14.14 मीटर पर सेकेंड, राइट, ओके। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्प्रिंग भी यूज़ हो रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। तो आओ देखते हैं। अ 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, मुबारक है, फ्रिक्शन भी आएगी, रफ है, is connected to a spring of spring constant 10 Newton per meter. K मालूम। The block is released from rest with the spring in the unstressed position. जब ऊपर था ये, जब छोड़ा इसको हमने, उस समय स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है। The block moves 10 centimeters down the inclined plane before again coming to rest, क्योंकि स्प्रिंग रोक लेगा इसको और नीचे जाने नहीं देगा। Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that the spring has a negligible mass and the pulley is frictionless. तो K मालूम हमको इतना, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x कितना, 0.1 मीटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ये रेड वाला वेक्टर, इसके दो टुकड़े, mg साइन थीटा यहाँ, ये एंगल 37 है, और ये mg cos 37 यहाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg cos 31 के। और एक फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, ऊपर की तरफ, ये नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इस ब्लॉक की बात करें, वो है mg साइन 37 नीचे खींचता है, और माइनस, नेट है तो माइनस लेंगे ना, ऊपर की तरफ को नेगेटिव लिया है, साइन कन्वेंशन में हमने, नीचे को हमने प्लस लिया है, ऊपर को हमने माइनस लिया है। सो mg साइन 37 माइनस म्यू mg cos 37, g बाहर ले लेते हैं, राइट, हमको, ऑलराइट, सो म्यू पता नहीं है इसलिए म्यू रखते हैं इसको, g बाहर, साइन 37 स्टूडेंट्स याद करो 37 वाला एंगल, ये अगर 37 है, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, तो साइन 37 विल बी 3/5, 3/5, cos 37 विल बी 4/5, सो g इंटू 3/5 माइनस म्यू 4/5, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। होल्ड इट हियर। तो एक तो हमने फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लगाया, एक हम वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वर्क डन हुआ, फोर्स लगा,
ये नेट फोर्स लगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ x 10 सेंटीमीटर्स मालूम है हमको, सो वर्क डन विल बी F इंटू एक्स, इतना वर्क हुआ। फिर रुक क्यों गया नीचे आना? क्योंकि स्प्रिंग खिंच गया। जब स्प्रिंग खिंचता है तो उसमें स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स ये वाला वर्क डन इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एक एक्स से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद जी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/5 माइनस 4/5 म्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स बाय जी। के हमारा 100 न्यूटन पर मीटर है, जी हमारा 10 है, x हमारा 1/10 है, तो 100 और ये कट गया, तो मेरे पास क्या आया 3/5, 1/2 को उधर ले जाता हूँ, -1/2, ये जब इधर आएगा पूरा तो प्लस हो जाएगा 4/5 म्यू। सो एलसीएम लेऊंगा 10, 5 2s are 10, so 6 minus 2 5s are 10, 6 minus 5/10 that's 1/10 is equal to 4/5 म्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, म्यू इज इक्वल टू 5/4, so mu is 1/8 and that is 0.125। पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये डायग्राम बनाएं, करें इसको, बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये, राइट। All right, so let's do another one. It says a bolt of mass 0.3 kg falls from the ceiling of an elevator moving down with a uniform speed of 7 meters per second. It hits the floor of the elevator and the height of the elevator is 3 meters and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Thak. Would your answer be different if the elevator were stationary? Now you see न्यूटन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है दैट कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो वेदर अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, we will not be able to see any difference in two experiments carried out in the two frames, एक रेस्ट फ्रेम, एक कांस्टेंट मोशन का फ्रेम। अगर एक्सेलरेटेड होता तो फर्क पड़ता, सूडो फोर्सेस होती, वो सब चीज़ें होती। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बोल्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, रिबाउंड तो किया नहीं, सारी की सारी हीट आ गई। mgh इज इक्वल टू q, m हमारा है 3/10 kg, g है 10, हाइट है 3, so that is 9 joule. So 9 joule of heat is being produced in this case, right? Okay, so let's take some. Okay, so I have a question from my own side for you. This question says, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3 4। ओके, नाउ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है 2 blocks of mass 2 kg, this is a question which came in the CBSE एग्ज़ाम, APS स्कूल का एग्ज़ाम है 2015 का, तो उनके स्टूडेंट्स मेरे पास कोचिंग करते थे, तो उनके क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया होगा, तभी यहाँ पर है ये। तो 2015 में उनके स्कूल के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, आपको भी आ सकता है, सो बी रेडी। 2 blocks of mass 2 kg and 5 kg are connected by an ideal string passing over a pulley. The block of mass 2 kg is free to slide on a surface inclined at an angle of 30 degrees, ये angle 30 है, with the horizontal, whereas 5 kg block hangs freely. Freely move मतलब find the acceleration of the system and tension in the string, given that the coefficient of friction mu is 0.3. तो ये इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन भी है, वो कितनी है 0.3। तो 2 किलो 5 किलो, लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लगेगी 50, धागे में कुछ टेंशन होगी टी, एक्सेलरेट ये नीचे करेगा, भारी चीज़ नीचे आएगी, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी।
तो mg के दो टुकड़े किए, एक mg, 2 का mg कितना होगा 20 cos 30 एंड इधर आएगा 20 sin 30, ओके। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन कहाँ होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, तो 20 sin 30 और म्यू एन की डायरेक्शन सेम है। तो अब सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए। फिर लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, 50 नीचे, टेंशन T ऊपर, एक्सेलरेशन A नीचे। हमको ढूंढना है ना, T भी ढूंढना है और A भी ढूंढना है। लेट्स राइट अ इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 50 माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। लेट्स राइट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2। यहाँ देखो 2 kg है, ये 2 kg है, mg म्यू mg cos 30 एंड 20 sin 30, दो इधर लग रहे हैं, टेंशन ऊपर, फिर भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन जो है मस्ट बी बिगर दैन, टेंशन मस्ट बी बिगर दैन दीज टू फोर्सेस। हाँ, इनसे बड़ी होगी टेंशन, पीछे रोकने वाली ये फोर्सेस हैं, और पूरे कहानी को मैं ऐसे देखूं तो राइट, सो ऊपर खींचने वाली टेंशन, नीचे रोकने वाली ये दो फोर्सेस, और फिर भी ये ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इसकी ऊपर की तरफ ही है, ओके। सो T माइनस 20 sin 30 माइनस म्यू mg तो 20 है, cos 30 इज इक्वल टू 2a, sin 30 1/2 होता है, 20 इंटू 1/2, म्यू हमको मालूम है 3/10 इंटू 20, cos 30 √3/2 होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो वो 3/3 आता है। सो टेंशन माइनस दिस इज इक्वल टू 2a। नाउ इफ आई ऐड दीज इक्वेशंस, इसमें 50 माइनस T इज 5a है, तो 50 माइनस T इज 5a, यहाँ पर टेंशन माइनस 10 माइनस 3/3 इज 2a। If I add these two equations, minus T plus T cancel, तो 50 minus 10 minus √3, that will be 7a. So 40 minus 3/3, solve करता हूँ इसको, तो आता है मेरे पास 34.8 is equal to 7a, और a is approximately equal to 7 5 से 35 होता है, approximately equal to 5 meter per second square. Now acceleration पता चल गया अगर हमको, let us put it in equation number 1. 50 minus T is equal to 5a, तो 50 minus T is equal to 5 5 is 25, so T is equal to 25 Newton. So that is your answer. हमने एक्सेलरेशन भी ढूंढ लिया और टेंशन भी ढूंढ लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी यूज़ हो रहा है और सब कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, राइट। देन वन मोर क्वेश्चन, इट सेज दैट एक ट्रेन है, ओके, एक ट्रेन है, एन engine of a 100 horsepower train draws a train of mass 200 metric tons with a velocity of 36 kilometers per hour. Find the coefficient of friction. पावर मालूम 100 horsepower, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट, सो पावर हमको वाट में पता चल गई। मास कितना है 200 मीट्रिक टन्स, मीट्रिक मतलब 1000, 200 इंटू 1000 टन्स, टन, ओहो 200 मीट्रिक टन्स, तो 1000 किलो को बोलते हैं 1 मीट्रिक टन, सो बन गया 2 इंटू 10⁵ kg की ट्रेन है। वेलोसिटी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, मीटर्स पर सेकंड में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। ढूंढना क्या है, म्यू ढूंढना है। ट्रेन आगे जाती है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, म्यू एन, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर आगे का फोर्स और पीछे की फ्रिक्शन इक्वल होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर फोर्स बड़ा होता तो स्पीड बढ़ती, कांस्टेंट स्पीड है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, cos 0 डिग्रीज, दैट इज बेसिकली पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, और फोर्स इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। बट हम क्या जानते हैं, दैट फोर्स तो म्यू एन भी होता है, फ्रिक्शन म्यू एन होता है, फोर्स हुआ P/V, सो P/V इज इक्वल टू म्यू एन,
और म्यू इज इक्वल टू पी बाय एन वी। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका, वो तो एम जी के इक्वल होगा, ट्रेन एम जी नीचे लग रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन भी उसी के बराबर होगा ऊपर की तरफ। सो म्यू इज इक्वल टू पावर अपॉन एन वी, डालते हैं वैल्यूज, सो पावर अपॉन एम जी वी, वैल्यूज डालते हैं तो हमारा आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.00373। सो इट्स अ क्वाइट अ स्मॉल फ्रिक्शन। ट्रेन के और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन काफ़ी कम होती है, इसीलिए ट्रेन स्लोली एक्सेलरेट करती है और स्टेशन आने से पहले अपने आप को स्लो करना स्टार्ट कर देती है। राइट, पूरी कहानी हमारे नज़रों के सामने आ गई। So that is it as far as all the questions of work, power and energy are concerned. So dear students, we will break here. In the next class we will start a new chapter and we will also give you a time for test. So please start preparing for the test of work, power and energy.